Okay, so next topic is exponential and logarithmic functions. Okay, exponential and logarithmic functions. So in this, okay, so in this we have drawn the graph for certain function. Let us understand what is an exponential function. Exponential function मतलब जो variable है, variable, it is in the exponent. Variable कौन होता है? X. ठीक है? So X is in the exponent. Then it is exponential function. ठीक, अगर x raised to 10 होगा then it becomes a polynomial function. X raised to 10, x raised to 20, x square, x cube, all these are polynomial functions. दोनों में difference है. x raised to 2 और फिर let us say x raised to 10, तो इसमें x raised to 10 में x जो वेरिएबल है इट इज इन द बेस और 10 जो कि कांस्टेंट है इट इज इन द पावर और एक्सपोनेंट. In case of a exponential function y is equal to 10 raised to x, here base is the constant and power or exponent is the variable. तो अगर हम इसका एक ग्राफ निकालते हैं जस्ट एज यू कैन सी, अगर यहाँ से अगर मुझे इस फंक्शन का ग्राफ निकालना है तो नेचर यही होता है हर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x यू कैन कैलकुलेट y. अगर x की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या होगी 10 raised to 0, दैट इज 1. और x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं इट बिकम्स 10 raised to 1, दैट इज 10. So using these 2 points, you can see that is the nature of the graph of a exponential function. Okay. So definition इसका है the exponential function. Exponential function is y is equal to b raised to x for b greater than 1. We are defining the function for b greater than 1 with positive base. That is positive base. अब ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका लेट अस सी व्हाट इज द डोमेन. तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज r. Domain of this function is r. Range of this function is r plus, that is positive real numbers. Third category, this function, that is exponential function, is increasing function. अब इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में भी हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स. व्हाट इज द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन? इंक्रीजिंग फंक्शन मींस as x is going on increasing, y is also increasing. ठीक है, x जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है y भी इंक्रीज हो रहा है. देयर वी से दैट इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन. यहाँ पर आप लिख सकते हो ब्रैकेट में y इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन x. ठीक है, तो हमने 3 चीजें देखी, डोमेन देखा, रेंज देखा और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इट इज ऑफ द नेचर इंक्रीजिंग. नाउ नेक्स्ट, अब लॉगरिथमिक फंक्शन देखते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है. तो अगर हमने लिखा है लेट अस सी दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैं नीचे में लिख लेता हूं लॉगरिथमिक फंक्शन. ठीक है, सो फॉर y is equal to b raised to x, that is what this is exponential function. We get x is equal to log y to the base b, and this is called as logarithmic functions. Now these are inverse functions of each other. These are inverse functions of each other, and that's why I've taken b as always greater than 1. So here also b is greater than 1. So x is equal to log y to the base b is called as logarithmic function. So here b's are inverse of each other. So therefore exponential and logarithmic functions are inverse of each other. Inverse का मतलब ही वही होता है कि अब this is y is expressed in terms of x, here x is expressed in terms of y, treating b as a constant. There are two variables x and y.
क्लियर? तो ये कन्वर्जन हमें आसानी से आना चाहिए, मतलब फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल। मान लीजिए लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल अगर आपने करना है तो जस्ट यू हैव टू रिमूव द लॉग, और यहाँ पर जो b है इट बिकम्स b रेज़ टू x व्हिच इज नथिंग बट y। और अगर y इज इक्वल टू b रेज़ टू x है, जस्ट यू कैन टेक log ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड का आप अगर log ले लेते हैं देन यू विल गेट दिस रिजल्ट फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। अब जब बेस 10 होगा we get two types of logarithms. So logarithmic functions में if the base is 10 then we say it as a common logarithm, base अगर e होगा तो natural logarithm. So common logarithm क्या होता है? Common logarithm. So in this we will observe the base as 10. और दूसरा होगा natural logarithm. In this base is e. E. So E is the exponential number over E. E is called as a exponential number, which is nothing but इसकी वैल्यू होती है 2.7183. इट्स एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7183. ठीक, अब जब आप लॉग टेबल यूज करते हो फिजिक्स केमिस्ट्री में, आप कैलकुलेशंस के लिए लॉग टेबल यूज कर रहे होंगे, या फिर स्टैटिस्टिक्स में भी कभी लॉग टेबल यूज करना पड़ता है. सो द लॉग टेबल्स यू आर यूजिंग दे आर कॉमन लॉगरिथम. सो ये कहाँ पर यूज होता है आपका? कैलकुलेशंस में. लॉग टेबल में जो होता है यू आर यूजिंग दिस इन कैलकुलेशंस. नेचुरल लॉग आपका यूज होगा कैलकुलस पार्ट में. ठीक है, सो वी आर इन कैलकुलस पार्ट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेट अस से लिमिट्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये सारे जगह पर अगर ओनली लॉग इज मेंशन इट मींस इट हैज द बेस ई. इट इज एजम्पशन. ठीक है, कैलकुलस में हमेशा बेस ई रहेगा, और ई के अलावा अगर कोई बेस होता है देन इट शुड बी मेंशन्ड ओवर देयर. ठीक, ई के अलावा कोई भी बेस हो सकता है बट वहां पर मेंशन होना चाहिए. सो दिस इज अबाउट लॉगरिथमिक फंक्शंस. अब अगर हम लॉग फंक्शन का अगर ग्राफ निकाले तो लेट अस ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस लॉग फंक्शन. So this is x axis, y axis, यहाँ पर 0 है. अब log हमेशा पॉजिटिव नंबर का एग्जिस्ट करता है और log 1 इज ऑलवेज 0. तो ग्राफ हमें जो log फंक्शन का मिलेगा इट इज ऑफ दिस नेचर एंड दिस पॉइंट इज 1, 0 because log of 1 is always 0 and log of negative numbers does not exist. तो लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए जो डोमेन होता है, डोमेन इट इज r प्लस एंड जो रेंज होगा इट इज r ऑल द रियल नंबर्स. अब जैसे कि इनवर्स फंक्शंस का कंसेप्ट ही वही है, इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट वही है, डोमेन रेंज इंटरचेंज होता है. देखिए आप यहाँ पर डोमेन r है, इधर डोमेन r प्लस है, इधर रेंज r है तो इधर रेंज r प्लस है, इंटरचेंज होगा क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है. नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to log x. Now I have written only y is equal to log x. It means what? Here base is e. अब इसी तरीके से अगर मैं e रेज़ टू x का ग्राफ निकालना चाहूँ, जैसे कि ये 10 रेज़ टू x का ग्राफ था, तो इसी e रेज़ टू x का ग्राफ भी आप निकाल सकते हैं. Something like this. This is the graph for y is equal to e raised to x. नेचर वही रहेगा, ग्राफ का नेचर नहीं बदलता है, पॉइंट्स जरूर बदलेंगे. ये 0, 1 इट विल रिमेन ओवर हियर ओनली बिकॉज़ अगेन e रेज़ टू 0 इज 1 है ना. x की वैल्यू जब 0 होगी तो e रेज़ टू 0 अगेन इट इज 1. ये पॉइंट तो ये हो गया था. अब ये दोनों ग्राफ अगर आप देखेंगे सो दे आर सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y is equal to x. ठीक है, यहाँ पर ग्राफिकली थोड़ा सिमेट्रिकल आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा सा मुझे इसे नीचे से लेना होगा, आप ले सकते हैं तो सिमेट्रिकल दिखाने. They are symmetrical, so they are mirror image around this line, that is y is equal to x. y is equal to x कौन सी लाइन होती है? जो यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल करती है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ. तो हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, ये हमने जो निकाला है दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये उसका इनवर्स फंक्शन मतलब कि लॉगरिथमिक फंक्शन. क्लियर?
ग्राफ के हिसाब से हमने समझ लिया log exists only for positive real numbers and therefore you will observe जब भी हम log x लिखते हैं तो theoretically it should be written as log of mod x. mod क्यों? क्योंकि अगर x नेगेटिव मान लीजिए होगा भी तो हमें उसका mod लेना है, then only log function is defined. ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है? Yes. Okay. Now let us see certain rules of logarithm. Rules of logarithm. तो सबसे पहला रूल तो यही है, that is called as definition of log. ठीक है ना? Definition of log. मतलब conversion from exponential to logarithmic, logarithmic to exponential. So that is the first rule. तो definition में आ गया. अब let us see one by one. First one, change of base formula. Change of base formula. See, sometimes we need to change the base of the logarithm. हमें कभी-कभी logarithm का base change करना पड़ता है. अब उस केस में अगर log का base change करना है तो कैसे हम change करेंगे? So for that it is the formula log p to the base a. According to your book, I am taking it log p to the base a. So this is given. अब log का base क्या है यहाँ पर? a. We need to make it b. हमें कुछ ऑपरेशंस के लिए कुछ कैलकुलेशंस के लिए इस बेस को b करना है मान लीजिए, then we can make it using this property, that is Taylor base formula, and it is given by log p to the base b divided by log a to the base b. अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर log का बेस a है, लेकिन राइट हैंड साइड पर log का बेस न्यूमरेटर में भी b है, डिनोमिनेटर में भी b है. You can choose convenient number as per your choice. जो कि आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम इसे बेस को चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस. सेकंड वन, log pq. सेकंड, log of pq to the base b. ठीक है, so this is nothing but log p plus log q. Obviously base will remain the same, which is on the left hand side, that is b. Third one, log of p upon q अगर मुझे लिखना है to the base b, if we have to separate the logarithms of these two terms, it can be written as log p minus log q. Obviously दोनों के बेस रहेगा b. And fourth one, log of p raised to n to the base b is equal to, अब यहाँ पर n नीचे आ जाएगा, so it becomes n into log p to the base b. तो ये सारे जो रूल्स ऑफ लॉगरिथम है ये वाइस वर्सा है, मतलब आप इधर से इधर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इन हैंड. जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसमें हमें क्या करना है, हमें मिक्स करना है तो मिक्स कर सकते हैं, सेपरेट करना सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग ऑल दिस. ठीक है, जैसे ये नीचे आया तो ऐसा अगर गिवन में तो हम इस को ऊपर भी लेकर जा सकते हैं. सो ऑल दीज आर रूल्स ऑफ लॉगरिथम. आई होप यू मस्ट हैव स्टडीड इट इन फिजिक्स. ठीक है, Yes, sir. ओके. चलिए अब यहाँ पर मेरे पास दो फार्मूले है, तीन कर दूंगा अकॉर्डिंग टू योर बुक. पॉज हो जाए वीडियो पॉज. अब यहाँ पर ये जो हमने डिस्कस किया इसके फार्मूला भी है, जरा तो मैं यहीं पर लिख लेता हूँ. डेरिवेटिव्स ऑफ दिस लॉगरिथमिक फंक्शन, दैट इज थ्योरम 5. थ्योरम के हिसाब से दिया है. चलिए हम भी नाम दे देते हैं थ्योरम 5. ddx of e raised to x is e raised to x. That is first formula. e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x होता है, that is the simplest formula in derivative. Next one, ddx of a raised to x is equal to
a raised to x into log a। तो जैसे a raised to x का फार्मूला हमारे पास है a raised to x into log a, वैसे ही e raised to x का होगा e raised to x into log e, लेकिन log e 1 होता है बिकॉज इट्स बेस इज अगेन e। तो यहाँ पर हमने वो रूल नहीं लिखा है, तो फिर पांचवा रूल आप ऐड कर दीजिए, log a to the base a is always equal to 1। छठवां एक रूल ऐड कर दीजिए, log 1 to the base a is equal to 0। log 1 to any base is always 0 and log of the number to the same base is always 1। ठीक, तो यहाँ पर भी e raised to x into log e है, लेकिन log a to the base e becomes 1 and therefore we have written only e raised to x। थर्ड फार्मूला जो इसमें आता है that is ddx of log x which is equal to 1 upon x। log x का डेरिवेटिव होगा 1 upon x। ये लो बैटरी के कारण हो रहा है। log x का डेरिवेटिव होगा 1 upon x। ठीक, तो हमने ये तीन फार्मूले यहाँ पर देखे, e raised to x, e raised to x और log x, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फार्मूले। एक और फार्मूला अगर मैं यहाँ पर ऐड करूं, ddx ऑफ log x to the base a, ठीक है, ddx ऑफ log x to the base a। देखिए मैंने दो फार्मूले ऐड किया एडिशनल, ये तो ये वाला और ये मैं ऐड कर। अब देखिए log x का डेरिवेटिव हमने लिखा है 1 upon x, तो ये भी तो log x ही है ना, बट बेस क्या है a। यहाँ पर बेस मेंशन नहीं है, मतलब e है, एज्यूम करके चलना है आपने, बेस e है, इधर बेस मेंशन है a है, तो इसका डेरिवेटिव 1 upon x नहीं होगा। इसे हमें पहले तो करना होगा चेंज ऑफ बेस, फार्मूला यूज करना होगा। log x to the base a can be written as log x, देखिए log x to the base a is nothing but log x upon log a। log x to the base a is log x upon log x। बेस मैंने लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा, तो दोनों का बेस मैंने एज्यूम कर लिया e, तो यहाँ पर दोनों का बेस e है। नाउ दिस डिनोमिनेटर that is log a is a constant, it remains as it is when we are finding the derivative। तो ये log a डिनोमिनेटर में ही रहेगा और log x का डेरिवेटिव होगा 1 upon x, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 upon x log a। फाइन, अच्छा log x का डेरिवेटिव 1 by x आया और log a वैसे का वैसे है। log a तो कांस्टेंट है, log a कांस्टेंट, it remains as it is। लिया यहाँ पे दोनों का बेस हमने e ले लिया, करेक्ट। अब ये जितने मैंने फार्मूले लिखे, ये सारे फार्मूले फिर से आपके कंपोजिट लीनियर फंक्शन, कंपोजिट जनरल फंक्शन उसमें चले जाएंगे। ठीक है, x की जगह पर अगर f ऑफ x होगा तो वो वाला कंसेप्ट, x की जगह पर अगर ax प्लस भी होगा तो वाला कंसेप्ट जो है जरूर इन सब में लगेगा। क्लियर है? इज इट क्लियर दिया? यस सर। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। Exercise 5.4. Differentiate with respect to x. Question first. Y is equal to. Now it is not given. Y is equal to दिया है क्या? देखिए आपके एक्सरसाइज में नहीं दिया है, ठीक है ना? But we are taking y is equal to y because y is always equal to f of x. ठीक है ना? तो we are assuming y is equal to f of x. तो हमने y is equal to जो भी गिवन फंक्शन है f of x को लिख दिया, that is e raised to x upon sin x। अब बताइए इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा?
कौन सा रूल यूज करना होगा? हम लॉग लेंगे पूरे का और फिर नहीं नहीं, directly you can start with the u upon v rule, no? You can take the log, not an issue, but then it will unnecessarily complicate the question. Simple question है, u upon v जो हमने रूल पढ़ा है, that is quotient rule. You can take the log, not an issue, but it will complicate the question. हमें simplify करना है, तो u upon v से हम solve कर सकते हैं, quotient rule, ठीक है? This is numerator, this is denominator. So differentiate with respect to x, you will get dy by dx on LHS equal to right hand side पर numerator upon denominator, तो हमने फार्मूला लिखा था denominator into derivative of numerator. चलिए मैं लिख लेता हूँ, वैसे तो लिखना नहीं, आप डायरेक्टली भी मेंशन कर सकते हैं, इतना लिखने से अच्छा आपने सीधा डेरिवेटिव डाल दिया तो भी चलता है. सो डिनोमिनेटर into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator whole divided by denominator square. So this becomes what? so वीडियो फ्रीज हो गया. लो बैटरी है ना आज मेरे मोबाइल में. Okay, so it becomes what? It is equal to sin x into e raised to x का डेरिवेटिव होगा e raised to x माइनस e raised to x into sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, डिनोमिनेटर में है sin स्क्वायर x. अब न्यूमरेटर में आप e raised to x कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में होगा sin x माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x. क्लियर? इस पे छोड़ सकते हैं ना. हाँ. हाँ जी बिल्कुल, इस पे आप छोड़ देंगे. दिस इज मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म. ठीक. Yes. Okay, third one, y is equal to e raised to x square. x square देखिए x क्यूब है, y is equal to e raised to x square है या फिर x क्यूब है? देख क्यूब है, बहुत छोटा है. क्यूब है. हाँ तो e raised to x क्यूब है. चलिए अब y is equal to e raised to x cube, differentiate with respect to x. Now treating this as a composite function, this is e raised to f of x. e raised to f of x, इसका डेरिवेटिव होगा e raised to f of x into f dash of x, मतलब कि d dx of x cube, है ना? e raised to x का डेरिवेटिव होता है e raised to x, लेकिन x नहीं था, कौन था? x क्यूब था, तो इसलिए x क्यूब का डेरिवेटिव से हमने मल्टीप्लाई कर दिया. And then you get the answer as x cube का डेरिवेटिव होगा 3x square into e raised to x cube. Question number 5. Y is equal to log of cos of e raised to x. Now here also we will use the concept of composite function. ठीक है? Function of a function of a function. 3 बार है, ध्यान रखें. तो dy by dx क्या होगा? dy by dx. अब सबसे पहले तो log x का डेरिवेटिव होगा 1 upon x, लेकिन x नहीं है, cos e raised to x है, इसलिए into d dx of cos of e raised to x. Clear? So it becomes 1 upon cos